Namaskar children, I hope you all are fine. Are you studying properly or not? Fine, do study beta. Today we will start chapter number 6, life processes. So before starting life processes, let us know what are living beings. So you know the main difference between living beings and non-living? Living beings are self-regulated, organized system. System you know, that is group of organs, organ system, then organs, then like that up to cellular level. So living beings are very much organized in self-regulated system. They show movements, responsiveness, growth, reproduction, metabolism, etc. So if we talk about movements, so movements are of many types. One kind of movement is like moving like this. This is called locomotion. Animals show locomotion, but plants do not show. So in case of plants, there are a number of other characteristics which are there to determine them that they are living beings. So if we talk about all these life processes, for these all things, energy is required. If I talk about sleeping, even you are watching TV, so for that process also you need energy. Energy comes from food, then food comes from plants, like that. So we will talk about these foods and other processes as well. What are basically life processes? What is the definition? Functions or those actions which are very essential for the survival and maintenance of plants, animals, or you can say organisms. Those are called life processes. So as we were saying, energy comes from food, right? And food को लेने का एक तरीका, way, manner is called nutrition. आपने खाना खाया, उसको अब पचाना भी है. उसके लिए क्या चाहिएगा? Respiration. Air का intake and exhaling is called breathing. But if we talk about respiration, तो oxygen लेना, oxidation होना food का, and then जो आपने खाना खाया उससे एनर्जी ली, अब उस एनर्जी को आपको ट्रांसपोर्ट भी कराना है, उस फूड को भी ट्रांसपोर्ट कराना है साथ साथ बॉडी के सारे पार्ट्स में, वेदर लिविंग बीइंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स और एनिमल्स. ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद उसका एसिमिलेशन भी हो गया, सारा सब कुछ हो गया. अब बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वेदर लाइक लिविंग बीइंग्स की बात हो रही है यहाँ, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लाइक लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, कहीं भी कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का तरीका इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. सो लाइफ प्रोसेसेस रिवॉल्व अराउंड दीज फोर मेन हेडिंग्स: न्यूट्रिशन, respiration, transportation and excretion. Now talk about nutrition. Nutrition is of why do we need food? Because it gives energy. There are types of nutritious elements like bodybuilding foods. So stomata is present on leaf lamina as well as some other parts of plants. See, we are discussing about plants because autotrophic nutrition comes in green plants, protist and bacteria. Protist, bacteria you have already studied in biodiversity in class 9. Fine. So CO2, carbon dioxide come from stomata. Fine. Air का exchange होता है. Water plants कहाँ से लेते हैं? रूट सिस्टम से, सॉइल से, मिनरल लिए. क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो कि ग्रीन लीव्स में होता है. फोटो यानी लाइट की प्रेजेंस में वो फूड बना देते हैं. C6H12O6 is the common example of glucose. You can see इसका molecular formula. आपको पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है? Now balance it. 12 are there. So 6 2s are 12. 6 2s are 12 plus 6 18. 6 2s are 12 plus 6 18. So this is photosynthetic process. You can say photosynthesis. Photo means light, synthesis means putting up closer together. Energy giving foods, protective foods, फिर carbohydrates, fats, proteins, ये सारे आप किए हुए हैं already. So we will focus on the types of nutrition. So the main types of nutrition are two: autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. Auto means self, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. अब आप सोचते होंगे खाना तो हम भी खुद बनाते हैं, राइट? क्योंकि हम वेजिटेबल चॉपिंग करते हैं, आटा गूंथते हैं,
लाइक हम ब्रेड भी सेकते हैं, तो अगर हमने ब्रेड खाया तो ब्रेड कहाँ से आया? व्हीट फ्लोर से। व्हीट फ्लोर कहाँ से आया? व्हीट प्लांट से। प्लांट ने क्या किया था? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो ऑटोट्रॉफ्स वो हैं, हम नहीं। हम तो कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बहुत से बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैम हाउ कैन यू से दैट वी आर हेटेरोट्रॉफिक? वी आर आल्सो ऑटोट्रॉफ बिकॉज वी कैन प्रिपेयर आवर फूड ऑन आवर ओन। On our own, that process, there are number of differences between these. अगर मैं ऑटोट्रॉफिक की बात करूं बेटे, सेल्फ जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से, you know already the difference between organic and inorganic, organic and inorganic. Carbon and its compounds are called organic compounds. So other than these organic, अगर मैं बात करूँ बॉडी में सल्फर की रिक्वायरमेंट है, बॉडी में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, सो दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक. तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से फोटोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, फोटो मीन्स लाइट, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होगी, केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फूड में. दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सो इफ वी समराइज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लाइक व्हाट आर द इवेंट्स, द फैक्टर्स, द रॉ मटेरियल व्हिच आर प्रिपेयर्ड, व्हिच आर यूज्ड, लाइक दैट. सो इफ आई टॉक अबाउट इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन यू नो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है. नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट energy. Light is a form of energy by chlorophyll. Now about chlorophyll, you already know that chlorophyll is present in chloroplast. Chloroplast you have done in class 9, that semi-autonomous cell organelle, when you were talking about mitochondria as well. So why do we call it semi-autonomous organelle? क्योंकि इसका खुद का DNA RNA होता है, 70 Spatbergs का RNA होता है. तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. क्लोरोफिल्स के अब कई टाइप्स होते हैं, ग्रीन क्लोरोफिल, येलोइश क्लोरोफिल, ऑरेंज क्लोरोफिल. ग्रीन के देयर आर अदर टाइप्स A, B, C, like that. Chlorophyll A is called primary photosynthetic pigment, main photosynthetic pigment. Yellowish is called xanthophyll. In chromatography in class 9 you have done it. Orange carotenes, and collectively these xanthophyll and carotenes, or you can say yellowish and orange chlorophylls, are called carotenoids. Second event is conversion of light energy to chemical energy. Light energy, light की presence में, photo की presence में water टूटता है. Lysis means breakdown. So photolysis of water. Water is what? H2O. अगर H2O breakdown हो तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन. Now if I balance it, then 2 water molecule will give rise to 4 hydrogen ion, 4 electron and oxygen molecule. These hydrogen ion electrons, these are actually used for the activation of chlorophyll and the production of ATP, adenosine triphosphate, and NADP. So when photolysis of water takes place, these things are formed, hydrogen ion and electrons. These are used for the activation of chlorophyll. Mainly these are used for the formation of power, that currency, or you can say assimilator power, to form ATP and NADPH. Third event is CO2, carbon dioxide, which is absorbed by water by plants from air if it is aerial plant, and from water if it is aquatic plant. देन CO2 से बना था ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म. तो आपने पढ़ा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन. तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो कार्बन का रिडक्शन हो गया, CO2 से क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट्स. सो दिस इज द थर्ड इवेंट. सो इफ आई टॉक अबाउट these, like these chlorophylls, where they occur, I have already told you that they occur in chloroplast. क्लोरोप्लास्ट का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ग्रेना होते हैं, राइट. स्ट्रोमा होता है. सो दिस ग्रेना एंड स्ट्रोमा. ग्रेना में होता है बेटा लाइट एनर्जी. फोटोसिंथेसिस का जब मैकेनिज्म करते हैं तो उसमें 2 टाइप्स की रिएक्शंस आती हैं, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस.
तो जो ग्रेनम है वहाँ होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट की जरूरत होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। एंड दिस वाज गिवन बाय सर हिल, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड हिल्स रिएक्शन। स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, इट डजंट मीन दैट इट विल ऑलवेज हैपन इन डार्क। डार्क रिएक्शन मीन्स इट डजंट रिक्वायर लाइट, but it requires the products of light reaction. So dark reaction was given by Blackman, that's why this is called Blackman's reaction. And this dark reaction के जो common pathways होते हैं वो होते हैं C3 cycle and C4 cycle. C3 cycle was proposed by Mr. Kelvin, while C4 was given by Hedge and Slack. C3 क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जबकि C4 में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, that is OAA. So that was all about the chloroplast, grana and stroma. So if I summarize these things कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या मिले, कौन से फैक्टर्स कहाँ उसको अफेक्ट करते हैं, तो देखिए रॉ मटेरियल्स में हमारे पास क्या क्या चाहिए था हमें? क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे होता है, CO2 उधर स्टोमेटा के थ्रू आता है। स्टोमेटा फिर आपने 2 टाइप के पढ़े हुए हैं, दैट आई मीन स्टोमेटा की जो फेजेस होती हैं कि वो क्लोज्ड है या ओपन है, उसमें टर्बो प्रेशर कैसे क्या इंक्रीज होता है। वाटर रूट सिस्टम से आया। लाइट, अब अगर मैं लाइट की बात करूं तो जो आप विबग्योर पढ़े हुए हैं, वायलेट से रेड तक, ये वाला जो जोन है, ये जो विजिबल रेंज है, दिस इज वेरी गुड फॉर प्लांट्स। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस पार की जो अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ होती है, लैम्डा होती है, दैट इज फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर, एंड दिस इज वेरी गुड, वेरी बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स फॉर द प्रॉपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट इफ प्लांट्स आर अंडर ग्रीन शेड मीन्स उनको वायलेट से रेड तक का रेंज नहीं मिलता, तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है दैट बिकम्स लो। फाइन, सो दीज ऑल थिंग्स वर देयर इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेटे रीड इट प्रॉपरली। आई नो कुछ बच्चों की सेल्फ रीडिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बेटा हैबिट फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एज। अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मेरी एज आप लोगों से बहुत ज़्यादा है, तो मुझे हैबिट फॉर्म करने में काफ़ी दिन लगेंगे, महीने से ज़्यादा, जबकि आप हार्डली 13, 14, 15 ईयर्स के हैं, मैक्सिमम 16, तो आपको मैक्सिमम 16 डेज लगेंगे ये हैबिट फॉर्म करने में, और 16 डेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं। आज से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा कर पाएंगे जब तक लॉकडाउन ओवर होगा और हम स्कूल में मिलेंगे। फाइन, सो बाय दैट टाइम, बाय बाय।